आगे बढ़ गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये नुमालीगढ़ टू डिब्रूगढ़ कॉरिडोर जो है ये टोटल 200 किलोमीटर है। इसमें लेंथ जो हमने प्रोजेक्ट की इसमें 65.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट की है। उसमें भी क्वालिटी के बारे में अनेक सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर बदले। आप कह रहे हो उसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें 134.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है, 4 सिविल वर्क पैकेजेस हैं और इसके लिए ट्रैफिक इज प्लेइंग ऑन 4 लेन कॉन्फ़िगरेशन इन ए लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर। इन द बैलेंस लेट all out efforts are being made to ensure that the traffic moves smoothly। इसमें काफ़ी हेवी ट्रैफिक है और इसके साथ एक है कि ये कुछ रोड का एरिया NHIDCL के पास है, कुछ NHI के पास है। तो अभी तो जिनके पास जितना काम है वो पैकेज पूरा करके रोड को राइडेबल क्वालिटी में अच्छा करेंगे और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद इस रोड को, क्योंकि ये लाइफ लाइन है आसाम की, ये पूरा NHI को देकर इसको पूरा कंक्रीट रोड बनाकर एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड का रोड बनाने का DPR हम तैयार करेंगे। और मुझे भी पता है कि इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडिशनली एन अमाउंट ऑफ 44 करोड़ हैज़ बीन स्पेंड फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ और इसका 2024 तक ये सब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसकी तकलीफ़ है, पहले से ये एजेंसियाँ बदली, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। तो ये प्रॉब्लम जुनैने पर यह लाइफ लाइन है। एक बार ये पूरा करके फिर इसका कंप्लीट नया DPR बनाकर कंक्रीट रोड बनाकर इसको हम अच्छे स्थिति में बनाएंगे और जल्दी आपको एक 4 से महीने में इसकी जो आज कुछ तकलीफ है वो काफ़ी प्रमाण में कम हो जाएगी। Already the majority problem in Assam, I am very much thankful to Honorable Chief Minister, you already resolved. Now negligible problems are there, it's not too much. But compare with Assam, we have the problem in Nagaland and Meghalaya. Because as per the Land Acquisition Act is concerned, particularly the act is passed by the parliament and rules are supposed to be made by the state government. Presently in some of the northeast state, the rules which are already there, it is very difficult to have land acquisition in that rule. So this is the time that they have to make reform in the land acquisition law. Without that it cannot be possible. And if we are not getting the land, how we are going to construct the road? So that is a big question. So I appeal all the state, but it is not with Assam now, for the other state also, that regarding land acquisition, there should be transparency, time-bound decision-making process, and corruption-free system, by which we can acquire the land and we can increase the speed of the road. Presently, there was a mistake from our side also. That mistakes we have to pay the price for that. That 0% acquisition, we award the project. 2%, 4%, it was previously done by the officers, now they are transferred. But now we have taken a strict decision that without 80% of the land acquisition, we will not give any appointment date. And today in the fresh project, the situation was so good. In the many of the project where we are giving appointment date, the land acquisition is completed 90%. Even Assam, there is no problem of land acquisition because of the cooperation of the Chief Minister and his persuasion. Now there is no problem. Now for the future, the land acquisition will not be a problem in Assam. But in other states also there are some problems. We are pursuing. We are going to organize the meeting of Chief Secretary and our Secretary also. And somewhere I am thinking to going to that state and taking the meeting for land acquisition and coordination, because otherwise we will take the decision and we will descope the project and we will have to go ahead. So this is not a good situation, but somewhere I am expecting cooperation from the other states. I am not talking about Assam, that they will cooperate us. Thank you. Sir, can you give us an update on the Kaladan project that links Myanmar to Mizoram and other parts of the northeast? Sir, when are you expecting to Kaladan Matrimonial project? Yes. Actually,
It will not be appropriate for me to give the answer of this question because presently the election is going on and because of code of conduct it will not be appropriate. But I am serious about it. I know the things and we are on the track. अच्छा चल रहा अभी आज रिव्यू हुआ और माजुली ब्रिज में थोड़ा सा दूसरे माइलस्टोन में थोड़ा प्रॉब्लम है पर अभी सब डिज़ाइन वगैरह मिल गए अप्रूवल मिल गए यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने कहा कि हम फास्ट काम करेंगे सर टोल गेट का समस्या भी बहुत ज़्यादा है सर देखो भी बना है उसकी मतलब में राष्ट्रीय हाईकोर्ट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट नहीं हुआ तो लोगों का बहुत बड़ा समस्या है क्या टोल गेट का हाँ रोड साइड एमिनिटीज ये NHAIDCL में इसमें जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाया मैं आदरणीय सभी मुख्यमंत्री जी से हमको लैंड चाहिए उसके लिए हम रोड साइड में कुछ जगह पर हमारी अलाइनमेंट चेंज हुई है महमूद जी जहाँ अलाइनमेंट बदली है वहाँ हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी तो आप ये कितनी लैंड और कितने जगह हम रोड साइड एमिनिटीज़ बना सकते हैं विशेष रूप से लेडीज़ के लिए वॉशरूम बहुत ज़रूरी है और छोटा बच्चा होता है उसको दूध माँ को पिलाने के लिए अलग जगह चाहिए पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन चाहिए आप ज़रा इसमें भी एक प्लान तैयार करिए और इसमें आसाम के ही लोगों को रोज़गार देंगे यहाँ का कल्चर यहाँ का फूड यहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वहाँ दुकानें रहेगी थोड़ा ये प्लान को ज़रा एक्सप्लोरेट करके करेंगे आई विल लुक इट क्या ये कोई समस्या नहीं है पूरे देश में है इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट दैट इज द रूल एवरीवेयर इन द कंट्री हाँ हाँ एक लोग एक बोलेंगे तो होगा एक लोग बोलो हाँ बोलो बोलो असम में साथ ही ये कामों का रिपोर्टर लोग के जो टोल गेट जितना है हर में सर टोल गेट में अगर रिपोर्टर लोग के करने तो बहुत अच्छा होगा सर इधर रिपोर्टर लोग टोल गेट में रिपोर्टर को बिना पे करके जाने का नहीं हो नहीं पाएगा अगर फिर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आएंगे फिर माजी सैनिक आएंगे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा और ये संभव नहीं है चलिए ठीक चलिए है आई एम थैंक यू वेरी मच चलो वहाँ होगा আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত